we were on the point of classification of law. So law has been classified into two. Let me tell you what. One is codified law and another is uncodified law. What do you understand by the term codified law? Yes. यानी ऐसे सब्जेक्ट मैटर जिसे जानने के लिए वी हैव सम लॉ. इफ वी वांट टू नो कि क्या पार्टीशन इज ट्रांसफर, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछते हैं बाय गिविंग 4 आइटम्स, इज पार्टीशन, सरेंडर, रिलिंक्विशमेंट ऑफ द राइट आर ट्रांसफर या सेल इज a ट्रांसफर. To know what is transfer, we have the legislation, TPA. To know what is anticipatory breach of contract, we have contract law. To know whether sleeping in the class is a fundamental right, कि आप कहीं पर कहीं पे भी सो सकते हो, तो that के लिए we have our grand norm, Constitution of India. Yes. To know how many witnesses are required to certify a fact, क्या कोई भी number of witness is not required, even one credential witness can prove a fact. Because there is a saying that evidence need not to be counted, rather it is weighed. और इस पे आपको मेंस में क्वेश्चन भी आता है कि एविडेंस को हम वे करेंगे, काउंट नहीं करेंगे. हो सकता है एक क्रेडिबल विटनेस हो दैट विल टेस्टिफाई अ पर्टिकुलर फैक्ट, और हो सकता है 1000 विटनेसेस देयर बट देयर इज नो क्रेडेंशियल्स इन देम. तो व्हाट इज, हु इज विटनेस, हाउ एविडेंस इज गिवन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एविडेंस इज देयर, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस मतलब क्या, what about reliability, what about relevancy. To know all this we have our Indian Evidence Act and corresponding BSA. So the subject which we are reading, that is BSA, and the old law corresponding to it, that is Indian Evidence Act, is the example of codified law. तभी तो हमारे पास बेयर एक्ट है. हर codified law पे we have the बेयर एक्ट. Yes. Uncodified law means ऐसे subject matter on which there is no rule, no legislation, no statute, and law of tort. Please ask me. Another category of law is substantive law and procedural law. Substantive law का मतलब होता है such law which tells the rights and duties of the parties. ऐसे लॉ जो हमें पार्टीज की राइट्स और ड्यूटीज बताते हैं, ड्यूटीज को वी कॉल इट एज द लायबिलिटीज आल्सो, दैट विल बी क्लासिफाइड एज सब्सटैंटिव लॉ. Our grand norm, which is the supreme law of land of India, Constitution of India, that is the example of substantive law. Indian Contract Act, TPA, IPC and the corresponding BNS. These are the examples of substantive law. Whereas on the other hand, procedural law, नाम में ही है प्रोसीजर, तो ये हमें प्रोसीजर बताते हैं कि इन राइट्स और ड्यूटीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है. तो प्रोसीजरल लॉ मीन्स सच लॉ which tell the procedure as to how to implement those rights and duties. RT stand for right, those rights and duties. And we have 3 law which fall under the procedural law की category में. Let us see what are those. Yes, one is your CPC, Civil Procedure Code of 1908. Another is your CRPC 1973, which has been now been repealed and replaced by Bharatiya Nyaya Suraksha Sanhita. Another is the law जो हम पढ़ रहे हैं, that is the Indian Evidence Act and the corresponding BSA. In your exam, if they ask you, you have to directly write it is the procedural law. Don't mark it is both the thing. क्योंकि many of the writers also, they mark it to be both, and that is entirely wrong concept. It contains the doctrine of estoppel, which has some traits of substantive law. हमें majority portion देखना होता है, then we decide something. क्योंकि बहुत सारे book में in the market, they are giving wrong answers. और उनकी कोई भी liability नहीं होगी, even though wrong answer is there. और एक wrong answer से
हैज अ टेंडेंसी टू नॉट पुट यू इन द प्रोसेस. तो इसीलिए कॉन्सेप्ट इज टॉट टू यू कि जहां गलत आंसर दिखे, बीट आवर बुक, यू विल बी मार्किंग इट राइट. अंडरस्टूड? तो व्हाट इज द आवर लॉ विच वी आर रीडिंग? It is the procedural law. Now let us see what is fact. Again and again we are using the term fact. What you understand with the term fact? Yes, anybody of you? क्योंकि पूरा एविडेंस एक्ट इज ऑल अबाउट फैक्ट. यस, यस और नो? फैक्ट भी तो है. तो ये फैक्ट है क्या एक्चुअली में? पहले हम क्या समझते हैं? जनरल मीनिंग, देन वी गो फॉर लीगल मीनिंग. तो एवरी फैक्ट को वी क्लासीफाई इनटू टू. Everything on this earth is fact. You are sitting is a fact. I'm speaking is a fact. You all have the intention to qualify the exam in first go. That is also a fact. This arrangement is there. कि यहाँ पे smart board है. This is the podium place. Your chairs are put. Cameras is there. Projector is there. Wall clock is there. ये सब क्या है? These all are fact. So let us see what exactly is the fact. So every fact को we classify into two, and that is physical fact and mental fact. Do you know who has classified this fact into physical fact and mental fact? हमारे एक्ट में तो दिया है, अधिनियम में तो दिया है. आई एम आस्किंग हु एल्स, क्योंकि पहले जुरिस्प्रूडेंस आया होगा ना, देन आवर लॉ कम्स. हु हैज क्लासिफाइड दिस? एनी आइडिया? इट इज द बेंथम, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछते हैं. बेंथम हैज क्लासिफाइड द फैक्ट इनटू फिजिकल फैक्ट एंड mental fact. This physical fact is also known as the external fact, and this mental fact को हम psychological fact के नाम से भी जानते हैं. Moreover, we call it as the internal fact also. तो समझ लेते हैं these two kind of fact ये हैं क्या. For understanding these, one of you please read section 3, जहां पर fact is given, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे corresponding section 2 subsection 1 clause F of the BSA. तो आप में से कोई पढ़ो section 3 of the Indian Evidence Act, where the term fact is provided in the interpretation clause. सबसे पहले means and includes is given. It means though it is exhaustive but a scope of adding on is there. लेकिन हाँ, heading change नहीं करेंगे और बेसिक स्ट्रक्चर में there won't be any change by amendment. तो देख लेते हैं पहले ये फिजिकल फैक्ट क्या होता है, जिसको हम एक्सटर्नल फैक्ट भी बोलते हैं. फिजिकल फैक्ट या एक्सटर्नल फैक्ट है, यानी सच फैक्ट विच कुड बी परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन. ऐसे फैक्ट, such facts which could be perceived by any of the sense organ. ऐसे फैक्ट जिसे हम परसीव कर सकते हैं किसी भी अपने सेंस ऑर्गन से, उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल फैक्ट और द एक्सटर्नल फैक्ट. एनी फैक्ट, जनरल मीनिंग क्या हो गया? फिजिकल फैक्ट है, यानी ऐसे फैक्ट जिसे हम सेंस ऑर्गन से परसीव कर सकते हैं. आई एम स्पीकिंग, आर यू लिसनिंग इट? यस. whatever I am dictating, you are writing. You all are sitting. You all are seeing each other. Yes. सपोज करो आप में से कोई है जो बहुत ज्यादा परफ्यूम मार के आता है और आता है तो like that. Is it a physical fact? Yes. If suppose somebody is making a fish, फिश बनाने से पहले smell like anything. मान लो आपका नेबर है, आपका फ्लोर वाला है, and he is a good lover of non-veg. He used to cook, और आपको पता चल जाता है what he is cooking because of that foul smell. Yes, with due respect to the lovers of non-veg, है ना? There are. If suppose somebody is fond of eating लाल मिर्च, if the person will be putting, आजू बाजू वालों को पता चल जाएगा, है ना, कि लाल मिर्च is being put. Is it the physical fact? Yes. The fragrance, जैसे अच्छा खाना बनता है तो by fragrance you feel like, विजय पुलाव घर में बन रहा होगा तो जैसे ही देशी घी और मटर और उसमें
कैश्यू पड़ेगा, फ्राई होगा, यस, खाना है जल्दी से, तो दैट इज अ फिजिकल फैक्ट। माइंड में है कि खाना है, वो क्या होगा, मेंटल फैक्ट। जब कह दिया कि भाई कब बनेगा, 20 मिनट से आई एम वेटिंग, इट विल टर्न इनटू फिजिकल फैक्ट। तो अभी पहले फिजिकल फैक्ट देखेंगे, फिर मेंटल फैक्ट देखेंगे। देख लेते हैं लीगल वर्ड्स में क्या है। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, और रिलेशन ऑफ थिंग, anything state of things or relation of thing which is capable of being perceived by sense organ is called as the physical fact, that is perceived by the senses. एनीथिंग का मतलब कुछ भी, स्टेट ऑफ थिंग का मतलब कंटिन्यूटी ऑफ थिंग। जैसे रोज आप आते हो तो हर जगह इन द सेम प्लेस चेयर्स आर पुट, पोडियम इज देयर, स्मार्ट बोर्ड इज देयर, कैमराज आर देयर। क्या ये फिजिकल फैक्ट है? यस, एंड दिस इज योर इलस्ट्रेशन ए। रीड इलस्ट्रेशन फर्स्ट। दोनों सेम है, बस नंबरिंग चेंज है न्यू एंड ओल्ड लॉ में। उससे पहले वन ऑफ यू प्लीज रीड सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ का फर्स्ट पार्ट, बीएसए का। मैंने बताया ना, पहले हम एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे और साइमल्टेनियसली बीएसए पढ़ लेंगे, बिकॉज यू मस्ट बी अवेयर, गुजरात में दे आर आस्किंग बोथ द लॉज, राजस्थान में दे आर आस्किंग बोथ द लॉज, इन छत्तीसगढ़ दे आर आस्किंग न्यू लॉ, हिमाचल में पुराना पूछा था। तो यू नेवर नो व्हाट दे विल बी आस्किंग, और पुराना लॉ तो बेस है, नए में कहाँ ऐड ऑन हुआ, क्या रिपील हुआ, दैट विल बी टोल्ड टू यू। तो बेटर है, सेफ साइड है टू रीड बोथ द लॉज। विच लॉ टू बी आस्क्ड, दोनों पूछें क्या या एक ही पूछें? और बिहार में तो यू ऑल आर अवेयर विद दैट कि वहां पर तो आईपीसी पूछते ही नहीं थे, नाइदर इन पीटी नॉर इन मेंस। लेकिन हाँ, इंटरव्यू में दे आर वेरी फंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। आउट ऑफ 10 दे यूज्ड टू आस्क 5 to 7 क्वेश्चन फ्रॉम आईपीसी, है ना। अब क्यों नहीं पूछा जाता है, ये तो देयर रीजनिंग इज देयर ना, कि घर घर को पता है व्हाट इज मर्डर, व्हाट इज थेफ्ट, तो व्हाई टू आस्क दैट? इट कुड बी अ केस, हु नोज, वो तो कमीशन जाने ना वहां की, एंड हाई कोर्ट जाने। कम बैक, रीड, आप में से कोई एक पढ़ो बीएसए का सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ। देखो जितने भी डेफिनेशन के टर्म्स हैं वो नए लॉ में कहाँ डाले गए हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के डिफरेंट क्लॉजेस में डाले गए हैं, अल्फाबेटिकली अरेंज किए गए हैं इन द न्यू लॉ। तो फैक्ट कहाँ है, एफ क्लॉज में है, इजी टू रिमेंबर ऑल्सो, पूरा सेम है, डिट्टो सेम इज देयर। तो मार्केट में ना ये मिथ है कि नया लॉ जो है वो ओवरहॉलिंग है ऑफ द ओल्ड लॉ, दैट इज नॉट द केस तीनों लॉ में। हाँ, सीआरपीसी के करस्पॉन्डिंग बीएनएसएस में देयर आर मेजर चेंजेस, मेनी न्यू थिंग्स हैज बीन पुट, आईपीसी में फ्यू न्यू ऑफेंसेस, बाकी पूरा रिस्टोर किया गया एज इट इज। हाँ, आपका काम जरूर बढ़ाया गया है, एक्ट ओमिशन एक जगह था तो दो जगह डाल दिया गया है, दैट इज बीइंग मेड। सम न्यू ऑफेंसेस जो पहले नहीं था उनकी पनिशमेंट डाल दी गई, लाइक मॉब लिंचिंग, लाइक पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, लाइक टेररिस्ट एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में तो वेरी माइनर चेंजेस हैज बीन मेड इन कंपैरिजन टू द ओल्ड लॉ, कई प्रोविजो हटाया गया है, कहीं न्यू प्रोविजन हैज बीन मेड, लाइक कोर्जन हैज बीन एडेड जो पहले नहीं था। तो आई लेट यू नो व्हाट चेंज हैज बीन ब्रॉट। तो डिट्टो सेम पोजीशन इज देयर, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। तो एनीथिंग मतलब कोई भी चीज, स्टेट ऑफ थिंग मतलब बार बार जो चीज होती है, एंड रिलेशन ऑफ थिंग मतलब one thing is connected with the other. जैसे यहाँ पे जो कैमरा is there, it has a relation with the smart board. Yes, he used to record the thing. तो whatever is there which we perceive by our sense organ, इसको हम बोलते हैं physical fact और external fact. Is the meaning clear?